Rahim. Assalamu alaikum. This is an International Islamic University School Sahiwal online lectures. This lecture is for grade 3 for the subject of English, and in this lesson we are going to begin our unit number 1, and the topic for today's lesson is present tense. Before beginning the lesson, you just need to read the instructions, and the instructions are: keep your book and your complete stationery with you. Prepare your classwork page with today's date and day on the top. Listen to the teacher attentively and follow all the directions she directs you. Listen to the lesson in pauses and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. If you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Now let's move towards our actual lecture. And the topic is simple present tense. It's a complete guide to describing habits, routines, and general truths in English. So, what is the simple present tense? The simple present tense describes actions that happen regularly or facts that are always true. The key uses of this tense are habitual actions, general truths, routines, and schedules. सो व्हाट आर द हैबिट्स स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है या एक स्टेटमेंट कोट करनी है जिसमें आपने बताना है कि समवन ईट्स एन एप्पल एवरी इवनिंग. फॉर एग्जांपल, इट्स हिज हैबिट टू ईट एन एप्पल एवरी इवनिंग. तो आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से कोट करेंगे? आप कहेंगे ही ईट्स एन एप्पल डेली इन द इवनिंग, एंड दिस सेंटेंस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. Another use of simple present tense is for general truths. For example, an action is that sun rises in the east. अब ये जो स्टेटमेंट है sun rises in the east, ये 100 years ago भी ट्रू था, ये आज भी ट्रू है, और ये 100 years के बाद भी ये स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगी कि sun rises in the east. So this statement will always be written or quoted as simple present tense, that sun rises in the east. I think you understand what I am trying to explain you. The third key use of this simple present tense is routines and schedules. For example, it's your routine to get up early in the morning daily and to go to school. So this action is always quoted as simple present tense, and you will say that I go to school daily. If you notice, in simple present tense, there are some key words used in the sentences of simple present tense. For example, you use the word always, you use the word regularly, daily, every morning, every day, etc. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये वर्ड्स आ जाएं, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीकेंड, एवरी ईयर, फॉर एग्जांपल, तो उन स्टेटमेंट्स से, इन वर्ड्स से हमें पता चल जाता है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएंगी. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस sentences. First of all, of course, we write a subject. What is a subject, dear students? Subject here is the action doer. एक ऐसा person, कोई ऐसा noun, कोई ऐसा pronoun जो action perform कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं subject. तो English sentences में simple present tense में सबसे पहले आता है subject, then verb base form. What does the base form means? It means verb की first form. Then object or any extra details. So what is the formula of simple present tense sentences? It's subject plus verb base form plus object. There is another speciality of verbs in simple present tense, that sometimes we use s or es with the verb form. अब वो हम कहाँ यूज़ करते हैं और किन रूल्स के साथ यूज़ करते हैं, ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. So the basic rule is, with I, we, they, you or any plural subject, we use base form of the verb. For example, I go, you eat, we play, they run. But when the subject is he, she, it or any singular noun or pronoun, we use s or es
with the verb. For example, he goes, she eats, it runs. अगर आप नोटिस करें तो ये जो फ्रेजेस हैं, जो क्लॉजेज हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन हैं, ही गोज़, हमने ये नहीं कहा ही गो. जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है आई गो, आई गोज़ नहीं लिखा, आई गो लिखा है. बट सेकेंड पार्ट में ही गोज़, शी ईट्स, इट रन्स. ये एस और ई एस कहाँ से आ रहे हैं? ये इस रूल से आ रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ हम एस या ई एस ऐड करते हैं विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और एनी सिंगुलर. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, what is the difference between the use of S and ES? Most verbs, for example, mostly the verb is used go. जिन verbs के end पे O आ जाए हमें पता चल जाता है कि इसके साथ जब हमने S E S ऐड करना है तो एक्चुअली हमने E S ऐड करना है. नेक्स्ट, ऐसे verbs जो कॉन्सोनेंट्स पे एंड हो रहे हैं उनके साथ हमने S ऐड करना है. और ऐसे verbs जो वॉवल्स के साथ एंड हो रहे हैं उनके साथ समटाइम्स हमने एस ऐड करना है और समटाइम्स ई एस ऐड करना है. अब ये कहाँ ऐड करना है वो हम देखते हैं कि ऐसे वर्ब्स जो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, टी सी एच के साथ एंड होते हैं उनके साथ हम ई एस ऐड करते हैं. और एक और अनदर स्पेशलिटी ये है कि ऐसे वर्ब्स जिनके एंड पे वाई आ जाता है और उनका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाई को आई के साथ रिप्लेस करके ई एस ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बेबी क्राइज, द बेबी क्राइज. बेबी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके साथ जो वर्ब ऐड हो रहा है उसके साथ हम ई एस ऐड करेंगे. बट वर्ब के एंड पे वाई है तो वाई को हम आई से रिप्लेस कर देंगे और क्राइज की स्पेलिंग क्या बन जाएंगे? CRIES. लाइक द एग्जाम्पल गिवन हियर इज स्टडी. अब एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है स्टडी जिसके एंड पे वाई आ रहा है. जब स्टडी का वर्ब किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा तो हमने क्या करना है? वाई को आई के साथ रिप्लेस कर देना है और ई एस ऐड कर देना है. Okay, now here is a practice exercise for you. This is the first exercise of this lesson and the exercise goes with she dash to school college in USA. she के साथ हम go ऐड करेंगे या goes ऐड करेंगे? goes ऐड करेंगे because she is a singular noun. Next, he dash a lot of bread and potatoes. he के साथ eat आएगा या eats आएगा? Yes, eats. Next example is Najia dash back to Pakistan when she can. Najia ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? नाजिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कम ऐड करेंगे या कम्स? यहाँ कम्स आएगा. फोर्थ सेंटेंस इज दे ऑफन डैश टू अदर कंट्रीज. दे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सो इसके साथ ट्रैवल आएगा, ट्रैवल्स नहीं आएगा. फिफ्थ सेंटेंस इज वी डैश फॉर 3 hours ईच डे. वी इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो हम इसके साथ एस ई एस ऐड नहीं करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा वी ट्रेन फॉर 3 hours ईच डे. And the last sentence is my sister and I dash go to shopping. My sister and I. तो ये मिलके क्या बन गया? ये एक प्लूरल सब्जेक्ट बन गया बिकॉज यहाँ पे my sister सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, I सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हम दोनों सब्जेक्ट हैं, my sister and I. तो दो लोग मिलके क्या बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस ई एस ऐड नहीं करेंगे और ये सेंटेंस बन जाएगा माई सिस्टर एंड आई लाइक टू गो फॉर शॉपिंग. दिस एक्सरसाइज इज टू बी डन ऑन योर स्टूडेंट्स बुक, सो प्लीज़ ओपन योर स्टूडेंट्स बुक, ओपन द यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज एंड वेयर द सेक्शन ऑफ लैंग्वेज पार्ट इज़ गिवन. वहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 आपको ये मिलेगी. अभी आप यहाँ से वीडियो को पॉज करें और यूनिट नंबर 1 के लैंग्वेज पार्ट में एक्सरसाइज 1 को
सॉल्व कर लें. Now let's move towards our next part, which is helping verb. Okay students, अभी तक हमने जितने verbs की बात की वो सब action words थे. But sometimes हम कोई ऐसे sentences से भी गुजरते हैं, ऐसे sentences भी हमारे सामने आते हैं जिनमें कोई obvious action word नहीं होता. For example, a sentence is she is a beautiful girl. अब इस पूरे sentence में कोई action word है? She is a beautiful girl. इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है. तो यहाँ पे हमें अभी भी किसी तो वर्ब की ज़रूरत है. तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन होगा? इस सेंटेंस में वर्ब होगा इज़. वैसे तो इज़ कोई वर्ब नहीं है बिकॉज ये कोई एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे एक्शन वर्ड नहीं है वहाँ पे इज़, आर, एम, हैज़, हैव, वॉज, वर ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहे होते हैं. इसीलिए हम इन्हें कहते हैं वर्ब टू बी, यानी कि बी की फॉर्म्स, होना की फॉर्म्स, समथिंग हैपनिंग्स की फॉर्म जिसमें कोई एक्शन तो नहीं है बट दे आर वर्ब्स टू बी. इज, आर, एम, हैज़, हैव, वॉज, वर. जब ऐसे सेंटेंसेस में आ जाएं जिनमें कोई एक्शन वर्ड नहीं हो तो वहाँ पे इन वर्ड्स को हम वर्ब की तरह डील करेंगे और वहाँ पे ये होंगे वर्ब्स टू बी. अब इनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अभी तक हमने बात की कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हैबिट्स, रूटीन्स और फैक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं. बट अभी एक ट्विस्ट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी बताया, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिंपल प्रेजेंट टेंस, हालांकि इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है. ओके, सो अब इनका यूज़ देखते हैं. यूज़ हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ. द सेम पेज ऑफ योर स्टूडेंट्स बुक यू जस्ट हैव डन योर एक्सरसाइज 1. वहीं पे एक्सरसाइज 1 के बाद आपके पास एक्सरसाइज 2 है. तो आप उस एक्सरसाइज को ओपन कर लें, अपनी लेड पेंसिल्स को शार्पन कर लें और लेड पेंसिल के साथ आप मेरे साथ इसको सॉल्व करें. एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज जवेरिया डैश अ साइकिलिंग चैम्पियन. जवेरिया आर अ साइकिलिंग चैम्पियन? नो, जवेरिया is a cycling champion. The second sentence is we dash interested in sports. We am interested in sports? No, we are interested in sports. The third sentence is I dash on the school cricket team. I is on the school cricket team? No, I am on the school cricket team. Fourth sentence is Seema and Laila dash not at school today. Seema and Laila ये दोनों मिलके सिंगुलर नाउन नहीं रहे, अब सीमा एंड लैला मिलके प्लूरल्स बन गए हैं. सो प्लूरल्स के साथ हम आर यूज़ करते हैं. सीमा एंड लैला आर नॉट एट स्कूल टुडे. सम साइकिल रेसेस डैश वेरी लॉन्ग. सम साइकिल रेसेस आर वेरी लॉन्ग. The cycle race in Pakistan dash very hard. The cycle race in Pakistan is very hard. Have you done your exercise on your book? That's great. Now let's move forward. And here is another twist. ये टॉपिक हमें कहता है कि समटाइम्स हम पोजेशंस को शो करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. इन सेंटेंसेस में भी कोई एक्शन वर्ड नहीं होता, पोजेशन होती है. पोजेशन का क्या मतलब है कि किसी की पोजेशन में कोई चीज़ है. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ ब्लू पेन. अब इस पूरे सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड नहीं है बट स्टिल ये सेंटेंस एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है और इसमें वर्ब टू बी क्या है? हैज़ और हैव. और ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, प्लूरल्स के साथ हैव आता है. सो सिंपली हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. जो अभी एक्सरसाइज आपने की है उससे वेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है. अपनी बुक पे इसको मेरे साथ सॉल्व करें. सो आई थिंक दिस इज़ अ डायलॉग. ये दो लोग बात कर रहे हैं, जुनेद एंड जवेरिया. फर्स्ट सेंटेंस में जुनेद क्या कह रहे हैं?
डू यू डैश अ कार जवेरिया? डू यू के साथ क्या आएगा? हैव आएगा या हैज़ आएगा? हैव आएगा. डू यू हैव अ कार जवेरिया? Then Javeria says, no, I don't have a car yet. I only have a bicycle. My brother has a car. I के साथ you के साथ have आया है और brother के साथ जवेरिया ने क्या बोला है? Has. Because singular noun के साथ हम has यूज़ करते हैं. I, we, they, you और plural subjects के साथ have यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जुनेद क्या कहते हैं? जुनेद सेज, व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? डू दे हैव अ कार? डू दे हैव अ कार? एंड देन जवेरिया आंसर्स, माई फादर हैज़ एन ओल्ड कार. ही वुड लाइक टू हैव अ न्यू वन. हैव यू डन दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक? That's great. So it's time to note your diaries. Please open your diary. आई होप आपने अपनी डायरी पे आज की डेट ऑलरेडी मेंशन कर ली होगी. अगर आपने अभी तक नहीं की तो डायरी का पेज ओपन करें और टॉप पे आज की डेट मेंशन करें और इंग्लिश की डायरी नोट करें. एंड द डायरी फॉर टुडे इज़ डू क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 on your workbook page number 3. On your workbook page number 3, there are 3 exercises. Exercise number 1, 2 and 3. All 3 exercises are about simple present tense. सेम उसी तरह की एक्सरसाइजेज हमने अभी सॉल्व की हैं और आपको ये करने में बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इंशाल्लाह. और अगर आप इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करते हुए कोई डिफ़िकल्टी फेस करें तो आपको ऑलरेडी बताया है कि यू कैन सेंड योर वॉइस नोट और योर इमेज मैसेज और योर टेक्स्ट मैसेज थ्रू व्हाट्सएप टू आवर स्कूल नंबर एंड यू विल गेट रिस्पॉन्स. गुड लक स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.